सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. Let's get started. हाउ टू क्रिएट टाइमलाइन इन एक्सेल। एक्सेल में टाइमलाइन कैसे बनाएं। ओवरव्यू। क्रिएटिंग ए टाइमलाइन फिल्टर इन एक्सेल is a useful way to interactively filter data in a pivot table or pivot chart by date. Here is a step-by-step guide to creating a timeline filter. अवलोकन। एक्सेल में टाइमलाइन फिल्टर बनाना पिवोट टेबल या पिवोट चार्ट में डेटा को तिथि के अनुसार इंटरैक्टिव रूप से फिल्टर करने का एक उपयोगी तरीका है। टाइमलाइन फिल्टर बनाने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है। नंबर 1, प्रिपेयर योर डेटा। Ensure your data is in a tabular format and includes a date field. The data should be organized with column headers. अपना डेटा तैयार करें। सुनिश्चित करें कि आपका डेटा सारणीबद्ध प्रारूप में है और इसमें तिथि फील्ड शामिल है। डेटा को कॉलम हेडर के साथ व्यवस्थित किया जाना चाहिए। नंबर 2, क्रिएट ए पिवोट टेबल। नंबर ए, select your data range. Number B, go to the insert tab on the ribbon. Number C, click on pivot table. Number D, choose where you want the pivot table report to be placed, either in a new worksheet or in the existing worksheet. Number E, click OK to create the pivot table. पिवोट टेबल बनाएं। नंबर ए, अपनी डेटा श्रेणी चुनें। नंबर बी, रिबन पर इंसर्ट टैब पर जाएं। नंबर सी, पिवोट टेबल पर क्लिक करें। नंबर डी, चुनें कि आप पिवोट टेबल रिपोर्ट को कहां रखना चाहते हैं, या तो किसी नई वर्कशीट में या मौजूदा वर्कशीट में। नंबर ई, पिवोट टेबल बनाने के लिए ओके पर क्लिक करें। Number 3, add fields to the pivot table. Number A, in the pivot table fields pane, drag and drop the fields you want to analyze into the appropriate areas, rows, columns, values. Number B, make sure to include the date field in the rows or columns area for the timeline to work. Pivot table में field जोड़ें। नंबर ए, पिवोट टेबल फील्ड पैन में उन फील्ड को खींचें और छोड़ें जिन्हें आप विश्लेषण करना चाहते हैं, उचित क्षेत्रों जैसे पंक्तियां, कॉलम, मान में। नंबर बी, टाइमलाइन के काम करने के लिए पंक्तियों या कॉलम क्षेत्र में दिनांक फील्ड को शामिल करना सुनिश्चित करें।
Number 4, insert a timeline. Number A, click anywhere inside the pivot table. Number B, go to the pivot table, analyze or analyze depending on the Excel version tab on the ribbon. Number C, click on insert timeline. Number D, in the insert timeline dialog box, select the date field you want to use for the timeline. नंबर ई, क्लिक ओके। टाइमलाइन डालें। नंबर ए, पिवट टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करें। नंबर बी, रिबन पर पिवट टेबल विश्लेषण या एक्सेल संस्करण के आधार पर विश्लेषण टैब पर जाएं। नंबर सी, टाइमलाइन डालें पर क्लिक करें। नंबर डी, टाइमलाइन डालें संवाद बॉक्स में वह दिनांक फील्ड चुनें जिसे आप टाइमलाइन के लिए उपयोगी करना चाहते हैं। नंबर ई, ओके पर क्लिक करें। नंबर 5, एडजस्ट एंड यूज द टाइमलाइन. Number A, a timeline will appear next to your pivot table. Number B, you can filter the data by clicking and dragging the timeline slider to select date ranges you are interested in. Number C, customize the timeline by using the options available on the timeline toolbar, such as changing the time label, years, क्वार्टर्स, मंथ्स, डेज। टाइमलाइन समायोजित करें और उसका उपयोग करें। नंबर ए, आपकी पिवट टेबल के बगल में एक टाइमलाइन दिखाई देगी। नंबर बी, आप अपनी रुचि की दिनांक सीमाएं चुनने के लिए टाइमलाइन स्लाइडर पर क्लिक करके और उसे खींचकर डेटा फिल्टर कर सकते हैं। नंबर सी, टाइमलाइन टूलबार पर उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके टाइमलाइन को अनुकूलित करें, जैसे समय स्तर बदलना, वर्ष, तिमाही, महीने, दिन। नंबर 6, फॉर्मेट द टाइमलाइन ऑप्शनल. नंबर ए, you can format the timeline for a better appearance by clicking on it and using the timeline tools that appear on the ribbon. Here you can change the color, style and layout of the timeline. टाइमलाइन को फॉर्मेट करें। वैकल्पिक। नंबर ए, आप टाइमलाइन पर क्लिक करके और रिबन पर दिखाई देने वाले टाइमलाइन टूल का उपयोग करके इसे बेहतर रूप देने के लिए फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ आप टाइमलाइन का रंग, शैली और लेआउट बदल सकते हैं। By following these steps, you will have created a timeline filter in your Excel workbook, allowing you to interactively explore and analyze your data by date. इन चरणों का पालन करके आपने अपनी एक्सेल कार्य पुस्तिका में एक टाइमलाइन फिल्टर बनाया होगा, जिससे आप तिथि के अनुसार अपने डेटा को इंटरैक्टिव रूप से एक्सप्लोर और विश्लेषण कर सकेंगे। Conclusion: creating a timeline filter in Excel enhances your ability to analyze data over time. By following the steps outlined, you can easily insert a timeline into your pivot table, allowing for a dynamic date range filtering that can simplify data exploration and improve insights. This feature not only adds interactivity to your reports but also helps in visualizing trends and patterns over specified time periods. With proper use, timeline filters can significantly enhance your data analysis capabilities in Excel.
निष्कर्ष, एक्सेल में टाइमलाइन फिल्टर बनाने से समय के साथ डेटा का विश्लेषण करने की आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। बताए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से अपनी पिवोट टेबल में एक टाइमलाइन डाल सकते हैं, जिससे डायनेमिक डेट रेंज फिल्टरिंग की अनुमति मिलती है, जो डेटा एक्सप्लोरेशन को सरल बना सकती है। यह सुविधा न केवल आपकी रिपोर्ट में इंटरैक्टिविटी जोड़ती है, बल्कि निर्दिष्ट समय अवधि में रुझानों और पैटर्न को विजुअलाइज करने में भी मदद करती है। उचित उपयोग के साथ टाइमलाइन फिल्टर एक्सेल में आपकी डेटा विश्लेषण क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।